Hello students, welcome you once again to Vision Q YouTube channel. So जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रेशियो का फर्स्ट पार्ट where we have discussed some basic to high level concepts. Okay, so in this part of ratio we'll discuss some questions जो होगा आपका बेसिक से लेकर हाई लेवल तक. ओके तो जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा था तो प्लीज डू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका लिंक आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके फर्स्ट प्लीज वॉच दैट फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने डिस्कस किया था रेशियो का कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो जाएगा देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच विल बी फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल. ओके और ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एपीएससी एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड फॉर अदर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एग्जाम. ओके फॉर ऑल द अदर एग्जामिनेशंस. तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा. देन आई कैन से दैट द कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ रेशियो. ओके एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस and also press the bell icon so that you will get notifications about different videos in the coming future. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज, क्वेश्चन नंबर 1. तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 225. ओके द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 225. It is given that the ratio between these two numbers is 3:5. Then find the difference between the both the numbers. A very basic question of ratio. Okay, if I say that two numbers are suppose a and b, so you are given what? A is to b is 3:5. Okay, and the product means a into b. Okay, a into b is how much? 225. So we have discussed in the first part of ratio in the last video. Okay, that जब भी आपको given condition product में दिया होता है, if the given condition is a product, not plus or minus, then you have to solve the question using the basic method, okay, which is using x. अगर जब भी क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट के बारे में दिया होगा, okay, always you have to solve that question using the concept of x. So let me take the value of a as thrice x and b as 5x and put these values in the given condition, which is a into b is 225. So thrice x into 5x is 225. Okay, now we know everyone 3 into 5 is 15 and 15 square is how much? 225. So if I cancel by 15 here, so 15s are 225. Now x into x is x square. So power changes to x square from x. Okay, तो x square यहाँ पे हो जाएगा आपका 15. If x square is 15, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? रूट ओवर 15. Now it is not possible to break root over 15. Okay, इसको आपको ऐसे रखना पड़ेगा root over 15. That is asked to find what difference between the both the numbers. Okay, difference का मतलब क्या होता है? A minus B और B minus A. Now here I can say that B is more than A. तो यहाँ पे आपको निकालने दिया है B minus A. तो 5x minus thrice x is twice x. तो आपको निकालना है किसका वैल्यू? आपको निकालना था वैल्यू ऑफ twice x. तो x is 15. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2√15. ओके तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2√15. तो ये एक बहुत ही सिंपल सा और एक बेसिक सा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो दैट व्हेनेवर यू आर गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स हमेशा आपको सॉल्व करना होता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स, दैट इज यूजिंग द बेसिक मेथड. तो नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज द क्वेश्चन नंबर 2. अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स. ए बैग कंटेन्स ₹4100 in the form of 5 rupee coins, 2 rupee coins and 1 rupee coins. The number of coins are in the ratio of 4:6:9. It is asked to find the number of 1 rupee coin. So you can see here there are three types of coin here. Rupees 5 rupee coins are there, 2 rupee coins are there and 1 rupee coin are there. तो number of coins का आपको ratio देके रखा है which is 4:6:9. तो ये क्या है आपका number of coins का ratio. Okay, this is a ratio of what? Number of coins. But the given condition is different. It is what? It is the total amount which is 4100. So total amount in the bag is given. Okay, total amount is how much? Rupees 4100. लेकिन ये नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, लेकिन आपको चाहिए अमाउंट. तो नंबर ऑफ कॉइन्स से आपको निकालना पड़ेगा अमाउंट इन रुपीज. तो लेट मी टेक देयर 4 5 rupee coins, 6 2 rupee coins and 1 9 rupee coins. Now if there are 4 5 rupee coins, तो 4 5 rupee coins से कितना पैसा आएगा? 5 into 4 which is rupees 20.
isn't it? Then come to 2 rupee coins. तो if there are 6 2 rupee coins, तो 6 2 rupee coins से कितना रुपीज आएगा? 6 into 2 which is 12. And there is 1 9 rupee coins, isn't it? There is 9 1 rupee coin. So if there is 9 1 rupee coin, तो यहाँ से कितना रुपीज आएगा? रुपीज 9. Now total amount in the bag is rupees 4100. So this amount is as per ratio. Okay, this amount is as per ratio. Now total amount will be how much? 20 plus 12 plus 9. So 20 plus 12 plus 9 is how much? 41 rupees as per ratio. But in the question, the total amount is given to be how much? 4100. So 41 rupees will represent rupees 4100. So then 1 is rupees 100. If 1 is rupees 100, it is asked to find what? Number of 1 rupee coin. Okay. So 1 rupee coin says how much? 9. There was 9 1 rupee coins as per ratio. So if 1 ratio is 100 rupees, then 9 ratio will be how much rupees? 900. तो इसका आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुपीज 900. 900 1 रुपी कॉइन्स आर देयर. तो ऐसा क्वेश्चन करने का ये तरीका होता है, जैसे कि पहले आपको कन्वर्ट करना होता है नंबर ऑफ कॉइन्स टू अमाउंट. ओके, बिकॉज गिवन इज नॉट नंबर ऑफ कॉइन्स, बट गिवन कंडीशन क्या दिया था आपको? टोटल अमाउंट विच इज 4100. नाउ ये क्वेश्चन तो इजी था बिकॉज यहां पे था ऑलरेडी द नंबर ऑफ कॉइन्स वाज इन रुपीज. नाउ समटाइम्स दिस नंबर ऑफ कॉइन्स मे बी इन पैसा ऑल्सो. ओके, सपोज एक क्वेश्चन में आप मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन दिया है आपको दैट इन ए बैग देयर इज 50 पैसा कॉइन्स, 25 पैसा कॉइन्स एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 4:5:3. सपोज ये आपका क्या किसका रेशियो है? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है. ये आपको दिया है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो. नाउ इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इज नॉट रुपीज बट पैसा, तो try to convert the amount in paisa only. Okay, always try to convert this amount to paisa, because if I convert this amount to rupees, then this may come in point. Okay, point कहां पे आ जाएगा? See, if I say there are 5 25 paisa coins, okay, everyone knows that 4 25 paisa coins make 1 rupee. So 1 25 paisa coin से कितना रुपीज आएगा? 1/4 rupees. तो अगर ऐसे आपके पास 5 25 पैसा कॉइन्स है तो 5 25 पैसा कॉइन से कितना रुपीज आ जाएगा? रुपीज 5/4. नाउ दिस विल कम इन फ्रैक्शन ना. तो आवर मेन एम इज व्हाट? ऑलवेज टू रिमूव द फ्रैक्शन इन द बिगिनिंग. तो फ्रैक्शन को ही रिमूव करने के लिए ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट दिस अमाउंट इन पैसा. ओके, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स पैसा में दिया है, नाउ 4 50 पैसा कॉइन से कितना पैसा आएगा? 4 into 50 पैसा. ओके, 200 पैसा प्लस 5 25 पैसा कॉइन से कितना पैसा आएगा? 5 into 25 पैसा कितना आ जाएगा आपका? 125 पैसा प्लस 3 10 पैसा कॉइन से कितना पैसा आ जाएगा? 3 into 10 पैसा विच इज 30 पैसा. नाउ टोटल अमाउंट एज पर रेशियो ये कितना हो जाएगा आपका? 200 प्लस 125 इज 325 प्लस 30 विच इज 355. नाउ दिस विल रिप्रेजेंट द गिवन वैल्यू. अगर क्वेश्चन में मान लीजिए आपको दिया है टोटल अमाउंट इज रुपीज दिस मच 4100, तो ये रुपीज में दिया है ना, लेकिन ये तो पैसा में है. सो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पैसा में. तो 4100 into 100 पैसा, और यहां से आपको निकालना पड़ेगा 1 का वैल्यू कितना है, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द गिवन क्वेश्चन व्हाटएवर इज आस्क्ड टू फाइंड. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमेशा कन्वर्ट करना है आपको in paisa only. Okay, amount should be converted to only paisa. Don't convert the amount to rupees because sometimes this amount may come in fraction or in point. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, a very important question based on the concept of number of coins and amount. तो स्टूडेंट्स ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3. It says that the sum of the three numbers is 62. The ratio of the first to second is 3:2 and that of the second to the third number is 5:3. It is asked to find out the second number is how much. Now let me take the three numbers है, suppose A, B and C. तो यहाँ पे क्या क्या आपको दिया था क्वेश्चन पे? sum of the three numbers का मतलब क्या है? A plus B plus C is 62. ये दिया था. नेक्स्ट रेशियो दिया था फर्स्ट इज टू सेकेंड, मतलब A is to B का आपको रेशियो दिया है 3:2. नेक्स्ट इट इज गिवन व्हाट रेशियो? सेकेंड और थर्ड रेशियो, दैट इज B is to C का भी आपको रेशियो दिया है. ओके, 5:3 का रेशियो दे दिया है. And we know if you know A is to B, B is to C, you can always find what? A is to B is to
C. ये था आपका मिक्स रेशियो. And how to find out this mixed ratio? I have discussed 3 different methods, one basic method and 2 different techniques to find the answer easily. So do as the first part of ratio. In that video I have discussed in details about the 3 methods of finding the mixed ratio. Okay, तो हमेशा आपको देखना है कि कॉमन सेम है कि नहीं. ओके, कॉमन शुड बी ऑलवेज सेम. तो कॉमन यहाँ पे क्या है, b इज कॉमन इन बोथ द रेशियो, लेकिन b यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 5 है. So you can either make the common same by finding the LCM or you can multiply in this way. First multiply top to bottom. ऐसे multiply कीजिए पहले. So 3 into 5 होगा आपका 15. Again back to top. 5 into 2 is 10 and again back to bottom. So 2 into 3 is 6. तो इसका रेशियो कितना मिलेगा आपको? 15:10:6. Now in the given question, the given condition is what? A plus B plus C, isn't it? तो हम लोग के हिसाब से A plus B plus C कितना होगा रेशियो में? 15 plus 10 plus 6 is 31. So 31 रेशियो के हिसाब से है. But in the question is this value of A plus B plus C is given to be how much? 62. So if 31 represents 62, then 1 ratio will represent 2 because A इसका double है. If 1 is 2, I can find out the values of A, B and C. Now it is asked to find out the second number only. Okay, second number is what? B. So B is 10 as per ratio. So 10 will represent 10 into 2, which is 20. Okay. So correct answer will be option number A. Okay. Option number A should have been 20. Okay. Option number A should have been 20. The right answer of this question number 3 is option number A, 20. Because B is 10 as per ratio. So 10 is, if 1 is 2, then 10 should be 20. Okay. So there is a simple printing mistake here. To answer of this question number 3 is option number A, 20. So next in front of you is question number 4. It says that if A plus B, B plus C, C plus A ratio is what? 3:4:5 and A plus B plus C 17, then it is asked to find the value of C. Okay. Now again I have discussed this concept in the first part of ratio. जब भी आपको दिया होगा A plus B, B plus C and C plus A. Okay, यहाँ पे A plus B आपको दिया है 3, B plus C is 4 and C plus A is 5 as per ratio. तो हमेशा आपको तीनों को प्लस करना है. ओके, ऑलवेज एड दिस 3 इक्वेशंस टुगेदर. तो क्या वैल्यू मिलता है आपको अल्टीमेटली? 2 into A plus B plus C, which will be how much? 12. तो यहां से किसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ A plus B plus C, which is 6. ओके, तो A plus B plus C is 6 as per ratio. तो from this you can find the value of A, B or C as per ratio. Since it is asked to find only C, okay, so let me find only C as per ratio. Now C निकालने के लिए आपको किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा? Put the value of A plus B, which is 3. So 3 plus C is 6. तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 3. तो A plus B plus C is 6 and C is 3 as per ratio. Now in the question the given condition is what? A plus B plus C is 17. Now A plus B plus C was 6 as per ratio, but in the question it is given to be 17. Okay, so 6 will represent what? 17. So 1 represents 17 by 6. Now 1 निकालने के बाद क्वेश्चन में क्या निकालने दिया था आपको? C का वैल्यू निकालने दिया था. तो C का वैल्यू कितना था रेशियो में? 3 था ना. So 3 will be representing how much? So 3 represents what? 17 by 6 into 3. तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 17 by 2. तो ये इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 17 by 2. तो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 5. एन अमाउंट ऑफ रुपीज 735 वाज डिवाइडेड अमंग ABC. ओके, 735 एक अमाउंट दिया था आपके पास, इसको डिवाइड करना था अमंग दिस 3 पर्संस A, B and C. Now if each of them had received 25 less, then their shares would have been in a ratio of 5:4:2. Okay, जितना A, B और C को मिलना चाहिए था, if I deduct or if I subtract 25 from the share of A, 25 from the share of B, and again 25 from the share of C also, then this amount would have been in the ratio of 5:4:2. Okay, initially 735 को डिवाइड नहीं करना इस रेशियो में. अब किसको डिवाइड करना है? 735 में से 25, 25, 25 मतलब 75 माइनस करने के बाद जितना पैसा होगा वो डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ
5:4:2 among A, B and C. So in such questions, okay, whenever something is distributed or something is divided among some persons, तो ऐसा क्वेश्चंस नॉर्मली बेस्ड होता है आपका रेशियो के ऊपर. ओके, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. तो हमेशा आपको निकालना पड़ेगा किसका रेशियो, A:B:C. सो टोटल में से इतना माइनस कर दीजिए. टोटल में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 25 मतलब 75. तो 735 में से अगर आप माइनस करोगे 75, ओके, तो कितना रहेगा आपके पास, 660. 735 माइनस 75 इज 660. तो 660 को डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 5:4:2 among A, B and C. तो if A get 5 rupees, B will get 4 rupees and C get 2 rupees. ओके, तो A प्लस B प्लस C तीनों मिला के कितना मिलेगा, रेशियो में तीनों को मिला के मिलेगा कितना, 11 rupees as per ratio. But in the question it is given to be how much, 660. तो 11 ratio will represent rupees 660. तो 1 ratio is 60. If 1 is 60, it is asked to find what, money received by A. तो A को अभी कितना मिलेगा, A को मिलेगा 5 rupees अभी, isn't it? A will get 5 rupees now. तो 5 will represent 5 into 60 which is 300. Now this 300 is the final amount received by A. If I deduct 25 from the share of A. आपको निकालना है मनी रिसीव बाय ए इनिशियली. ओके, आपको निकालना क्या था, मनी रिसीव बाय ए इनिशियली, अगर डिडक्ट नहीं करते हम लोग. सो अगर डिडक्शन ऑफ 25 इज नॉट हैव बीन डन, देन ए वुड हैव गॉट 25 मोर ना, इजंट इट? तो ए को इतना और ज्यादा मिलता है उसको. सो ए को कितना मिलता है, रुपीज 325. तो ये था फाइनल शेयर ऑफ ए और ये है आपका इनिशियल शेयर ऑफ ए और द मनी रिसीव बाय ए इफ डिडक्शन वाज नॉट डन. तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 325. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो प्लस percentage also. Okay, it says that the salaries of A, B, C and the ratio of 5:3:2. तो A, B, C 3 पर्सन है. ओके, तीनों का आपको रेशियो दिया है, किसका, सैलरी का. कितना रेशियो दिया है, 5:3:2. ओके, A:2B:C का रेशियो. If the increments of 20%, 10% and 20% allowed in their salaries. Okay, so if the salaries of A is increased by 20%, increase का मतलब क्या होता है, plus 20%. If the increment of B salary is 10% and if the increment of C salary is 20%, तो क्वेश्चन में क्या बताया है, आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ द न्यू सैलरीज, न्यू रेशियो ऑफ द सैलरीज. तो आपको निकालना है न्यू रेशियो. ओके, नाउ सी, ऐसा क्वेश्चन करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ए वेरी सिंपल टेक्निक टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ओके, अगर आपके पास एक रेशियो दिया है और रेशियो से इतना इतना सेंस दिया है, मे बी परसेंटेज इंक्रीज और मे बी परसेंटेज डिक्रीज. ओके, एनी परसेंटेज चेंज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज. तो अगर आपको एक रेशियो दिया है और रेशियो से रेशियो ही निकालने दिया है, तो इन सच क्वेश्चंस ऑलवेज टेक दिस टोटल एज 100%. ओके, 5 का मतलब क्या होगा, 100% ऑफ 5, बिकॉज कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, हमेशा 100% होता है. तो सैलरी ऑफ ए था 100% ऑफ 5, लेकिन यहां से इंक्रीज कितना हो गया, 20% ऑफ 5 इंक्रीज हो गया. तो अभी एक सैलरी कितना हो जाएगा आपका, 120% ऑफ 5. तो ये हो गया आपका फाइनल सैलरी ऑफ ए. सिमिलरली बी के पास था 100% ऑफ 3. ठीक है, बी का सैलरी इंक्रीज हो गया 10% ऑफ 3. तो 100% ऑफ 3 प्लस 10% ऑफ 3 से कितना मिलेगा, अभी उसका सैलरी कितना हो जाएगा आपका, 110% ऑफ 3. इन ए सिमिलर वे सी का सैलरी था 100% ऑफ 2. ओके, तो सी का इंक्रीज कितना हो गया, 20% इंक्रीज हो गया सैलरी. तो सी का कितना हो जाएगा आपकी, 120% ऑफ 2 हो जाएगा. तो इसका रेशियो निकालना है. ओके, फाइनल सैलरी का रेशियो निकालना है ऑफ A:B:C. Now don't try to find out this value of percentage. Keep like this because it is asked to find a ratio only ना. तो everything will be cancelled out. ये percent cancel जाएगा. Next common क्या है, 1 0 is common. Next 2 is common. Okay, 2 is not common here because 2 यहाँ पे तो है लेकिन 2 तो यहाँ पे नहीं है ना. Okay, तो just multiply now. Just multiply. Okay, so कितना आएगा, 12 into 5 is 60. 11 into 3 is 33
एंड 12 टू जा कितना होगा 24. अच्छा यहाँ पे अभी 3 कॉमन है, तो कैंसिल बाय 3 नाउ. 3 से 20 टाइम्स, 3 से 11 टाइम्स एंड 3 से 8 टाइम्स. तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा आपका 20:11:8. तो ऐसा क्वेश्चन करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है. ठीक है, एक रेशियो से अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज दिया होता है कोई भी क्वेश्चन पे, ऑलवेज टेक टोटल एज 100%. ओके, एंड इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ न्यू सैलरी. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20:11:8. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. ओके, इट सेज दैट द एनुअल सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:4. तो ए और बी का आपको सैलरी का रेशियो दिया था कितना 5:4 दिया था. एंड देयर एनुअल एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 4:3. मतलब वन इज द इनकम का रेशियो दिया था 5:4 और दूसरा किसका रेशियो दिया, एक्सपेंस का रेशियो दिया. कितना दिया है 4:3. ओके, नाउ इट इज गिवन दैट इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹800 एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, 800 इज द एनुअल सेविंग्स ऑफ बोथ ऑफ दिस पर्संस ए एंड बी. मतलब सेविंग्स ऑफ ए भी आपको दिया है 800 और सेविंग्स ऑफ बी भी आपको दिया है कितना ₹800. देन फाइंड देयर इनकम्स. ओके, फाइंड देयर इनकम्स मतलब यहां पे आपको निकालना है टोटल इनकम, बिकॉज ऑप्शन में आपको एक ही इनकम दिया है ना, तो इस यहां पे आपको निकालने दिया था फाइंड देयर टोटल इनकम्स. मतलब सम ऑफ देयर इनकम्स, यू कैन से इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी. तो पहले इनकम निकालना पड़ेगा. नाउ ऐसा क्वेश्चन के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, नाउ सी, इफ यू नो इनकम एंड एक्सपेंस you can find the savings, isn't it? Because we know income is always equal to what? Expense plus savings. तो यहां से if you know income and expense you can find savings ना. How? By subtracting income minus expense will give the savings. तो income of A is 5 as per ratio and income of expense of A is 4 as per ratio. तो savings of A will be how much? 5 minus 4 which is 1 as per ratio. In a similar way if I see the in case of B, बी का इनकम था 4 रुपीज रेशियो में और एक्सपेंस है 3 रुपीज एज पर रेशियो. तो इसका सेविंग्स कितना होगा रेशियो में 4 minus 3 which is 1. अच्छा, दोनों का एक्सपेंस दोनों का सेविंग्स सेम है, 1 ही है. और सेविंग्स क्वेश्चन में आपको सेम दिया था ना, दैट सेविंग्स ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग्स ऑफ बी इज इक्वल टू हाउ मच 800 रुपीज. तो दिस वन सेविंग्स ऑफ बोथ ऑफ देम विल रिप्रेजेंट ₹800 एज पर रेशियो. ठीक है, तो 1 is 800, I can find any value. It is asked to find the income of A and income of B. Okay. So income of A will be how much? If 1 is 800, okay, if 1 is 800, it is asked to find out the sum of the incomes, total income. So total income will be how much? 5 plus 4, that is 9 as per ratio. Okay. So 9 will represent how much? 9 into 800, which is ₹7,200. तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दिस. टोटल इनकम्स ऑफ बोथ ऑफ देम इज 7,200. ओके, तो यहां पे ये मेथड था फर्स्ट मेथड, ये था आपका फर्स्ट मेथड. ओके, बिकॉज यहां पे मैंने क्या किया, डिफरेंस को निकाल लिया. क्वेश्चन में डिफरेंस था गिवन कंडीशन. अच्छा, डिफरेंस तो पहले से सेम था ना, डिफरेंस इज 1 और यहां भी 1 ही था. तो आई कैन से दैट 1 विल रिप्रेजेंट ₹800. तो ये क्वेश्चन निकालना इजी था. ओके, ये क्वेश्चन निकालना इजी था बिकॉज डिफरेंस वाज ऑलरेडी सेम हियर और डिफरेंस क्वेश्चन में आपको सेम ही दिया था. नाउ मान लीजिए क्वेश्चन में डिफरेंस इज नॉट सेम. ओके, सपोज इन ए क्वेश्चन इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:6, expense of A and B is 4:3. Now in this case savings of A will be how much? 5 minus 4 is 1 as per ratio. Okay, but savings of B will be 6 minus 3 which is 3. तो यहां पे सेविंग्स ऑफ ए और सेविंग्स ऑफ बी सेम नहीं है एज पर रेशियो, तो ये मेथड वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा. तो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ वन मेथड जो सब में एप्लीकेबल है. अगर डिफरेंस सेम है तभी एप्लीकेबल है, और अगर डिफरेंस डिफरेंट है, डिफरेंस इज नॉट सेम, सेविंग्स इज नॉट सेम, तो भी एप्लीकेबल है. ठीक है, तो इस मेथड का नाम होता है आपका, ये होगा आपका सेकेंड मेथड. इसका नाम क्या होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. ओके, इसका नाम क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. ये कहां पे एप्लीकेबल है, जहां पे भी आपको दिया होगा 2 रेशियोज. ओके, 2 रेशियोज शुड बी गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली देयर वर्टिकल गैप और डिफरेंस शुड बी गिवन. Okay, their vertical gap or difference should be
given. Their difference may be same, may not be same, no issue. Just their difference or gap should be given and there should be given two ratios. तो ऐसा क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. जैसे इफ आई सी दिस क्वेश्चन, यहां पे आपको दिया था ए और बी का इनकम का रेशियो, isn't it? 5:4. एक्सपेंस का भी आपको रेशियो दिया था कितना? 4:3. तो इनकम और एक्सपेंसेस आर यू आर गिवन टू रेशियोज, तो दो रेशियो आपको दिया था. देयर गैप और डिफरेंस इज ऑल्सो गिवन. ओके, ए गैप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस इज व्हाट? सेविंग्स. दोनों का सेविंग्स आपको दिया था. सेविंग्स ऑफ ए इज हाउ मच? ₹800. और सेविंग्स ऑफ बी का भी कितना दिया है? ₹800. ओके, सो इन सच क्वेश्चंस व्हेनेवर यू आर गिवन टू रेशियोज और उसके भी इसका डिफरेंस इज गिवन, always you can apply this concept of cross product method, a very important method of ratio questions. Now what to do? You have to cross multiply. Okay, first multiply in this way. 5 into 3, 4 into 4. So 4 into 4 is 16. 5 into 3 is 15. तो always आपको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. किसको किससे? लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. ऑलवेज आपको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट. ओके, तो 16 minus 15 is 1. तो दिस 1 will represent how much? ओके, तो ये पार्ट कहां से मिलेगा? ये नीचे वाला पार्ट से. ओके, अभी आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, दिस एंड दिस. तो 4 into 800 कितना मिलेगा आपको? 3200. एंड 3 into 800 2400. तो ऑलवेज आपको माइनस करना है, ठीक है? लार्जर माइनस स्मॉलर. सो 3200 माइनस 2400 कितना मिलेगा आपको? ₹800. तो 1 will represent ₹800. ठीक है, तो ये 1 कहां से मिला? इस पार्ट से मिल गया. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्सट्रैक्ट करने से 1 मिलता है. एंड 800 कहां से मिला? ये नीचे वाला पार्ट से. 4 into 800 एंड 3 into 800 को आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई एंड माइनस. सो इफ 1 इज रिप्रेजेंटिंग ₹800, यहां से आपको क्या निकालना है? टोटल इनकम. सो टोटल इनकम विल बी हाउ मच? 5 plus 4 as per ratio, that is 9 as per ratio. So 9 will represent how much? 7,200. So this is the answer. Option number D. So such questions are very important for the examination. Okay. Questions based on the concept of cross product method. So whenever you are given two ratios and their gap or difference is given, you can apply always cross product method in such questions to find the answer easily. तो ये हो गया आपका without using x. Okay. Now ऐसा questions बहुत ही important है कोई भी एग्जाम में. Suppose मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया आपको कि टू नंबर जिसका रेशियो था 4:7. ओके, ए एंड बी आर टू नंबर जिसका रेशियो था पहले 4:7. इफ 9 इज एडेड टू ईच ऑफ दिस नंबर्स, इफ 9 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 9 को अगेन आपने सेकेंड नंबर को ही ऐड कर दिया. इफ 9 इज एडेड टू ईच ऑफ दिस नंबर्स, द रेशियो बिकम्स 2:3. तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन कैन बी डन अगेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, बिकॉज यू आर गिवन टू रेशियोज. ओके, दो रेशियो दिया था 4:7, नेक्स्ट इज 2:3. ओके, और उसके भी इसका गैप भी दिया है ना. दिस गैप फ्रॉम 4 to 2 इज +9, बिकॉज ये गैप कब हुआ? 9 को ऐड करने के बाद, और आपने बी को भी 9 में ऐड कर दिया ना. तो अगेन एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. ओके, इन सच क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ यू, इज क्वेश्चन नंबर 8. ओके, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें. तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? अगेन आपका कॉन्सेप्ट है रेशियो प्लस परसेंटेज. ओके, रेशियो प्लस percentage. Now see what is given here. The ratio of the expenditure of x, y and z is 16:12:9. तो x, y and z का आपको expenditure का रेशियो दिया है. Okay, 16:12:9. ठीक है. Next, their savings are respectively 20%, 25% and 40% of their incomes. Okay. Now, रेशियो दिया है आपको एक्सपेंडिचर का, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है अबाउट द सेविंग्स. ओके, तो व्हाट टू डू? अगर टोटल इनकम में से x ने सेव किया 20%, ओके, इफ द सेविंग्स ऑफ x इज 20%, देन एक्सपेंस ऑफ a कितना हो जाएगा? 80%. बिकॉज हमेशा याद रखिएगा टोटल इनकम इज ऑलवेज 100%. ओके, अगर 100% में से a सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, देन एक्सपेंडिचर ऑफ a कितना हो जाएगा? 80%. isn't it? तो दिस 16 will represent 80% of total. ठीक है, 80% of total is 16 rupees as per ratio. Then savings of B is how much? 25% of his income. So if B saves 25%, then B will expend how much?
expense, or we will spend how much? 75%. So this 12 will represent 75% of his income. Okay, and the savings of Z is 40%. If the savings of Z is 40% of his income, then expense of Z is 60%. The expense of Z will be how much? 60% of his income. So expense of Z, this 9 will represent how much? 60% of his income. Okay. Now ये हो गया आपका percentage expenditure. Okay. Now it is asked to find what? Sum of their incomes. Okay. I have to find out the incomes first of all as per ratio, isn't it? Okay. Now see 80% of total in case of X है ये is 16. So 80% of a number is 16. To find out this complete number or to find out the complete income of X, always find how much percent? 100%. Okay. Now 16 ones are 16. 16 fives are 80. Okay. If 5% is 1, then 100% is how much? Now see 100 can be found from 5% ना? By multiplying by what number? Multiplying by 20. तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 1 into 20 कितना मिलेगा आपको? 20 रुपीज. तो ये होगा आपका इनकम ऑफ ए विच इज 20 रुपीज. तो ए का इनकम कितना मिलेगा आपको? 20 रुपीज. ठीक है, ए का इनकम मिलेगा आपको 20 रुपीज. सो द इनकम ऑफ ए इज 20 रुपीज. ओके, so income of A is 20 as per ratio. Then come to income of B. 75% of total income of B is rupees 12. If 75% is 12, okay, 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 in fraction. So 3/4 of total income of B is 12 rupees. So cancel out to find out the income of B. Okay, 3 4s are 12 and 4 into 4 is 16 as per ratio. So income of B will be 16 rupees as per ratio. Then come to Z or come to C suppose. Okay, ये था आपका income of X, ये था income of Y. Okay, A और B नहीं था, X Y Z दिया था. तो income of X is 20 rupees as per ratio. The income of Y is 16 rupees as per ratio. Let's come to income of Z. 60% of his income is 9 rupees. If 60% is 9 rupees, okay, now 60% का मतलब in fraction it is how much? 3/5. So if 3/5 of total is 9, then total कितना हो जाएगा आपका? 15 rupees as per ratio. Okay, so income of Z आपको कितना मिल जाएगा आपका? रुपीज 15. तो income of X is 20, income of Y is 16 and income of Z is 15 as per ratio. Now it is given that the sum of the incomes is 3060. Okay, so sum का मतलब क्या होता है? A plus B plus C या फिर X plus Y plus Z income. So 20 plus 16 plus 15 कितना मिलेगा आपको? 51 as per ratio. But in the question the total income is how much? 3060. Okay, so 15 will represent rupees 3060. 51 will represent rupees 3060. Then 1 will represent how much? ये इसका 6 times है, 60 होगा. तो 1 will be representing rupees 60. If 1 is 60, it is asked to find what? Y का salary और Y का income. तो Y का income कितना था? 16 rupees था as per ratio. तो 16 will represent how much? 16 into 60, which is 960. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर A, रुपीज 960. तो previous two questions was based on the concept of ratio plus percentage in these two questions. So next in front of you is two more questions, question number 9 and question number 10. तो question number 9 में देखिए क्या दिया था? इनकम का रेशियो दिया था 3:7:4 और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है? 4:3:5. तो A, B और C का इनकम का रेशियो दिया था 3:7:4. ओके, और एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया है आपके पास? 4:3:5. ठीक है. नाउ सेविंग्स का रेशियो दिया नहीं है. ओके, इफ यू नो इनकम एंड एक्सपेंस यू कैन फाइंड द सेविंग्स. इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग्स. ओके, नाउ सेविंग्स ऑफ ए इज 300. ये किसका सेविंग्स है? ए का सेविंग्स दिया है क्वेश्चन पे. एंड सेविंग्स ऑफ सी इज 575. नाउ सी, सेविंग्स ओनली ए और सी का दिया है ना. Now to find out the savings of A and savings of C, what to do?
इनकम रेशियो डिफरेंट है, एक्सपेंस का भी रेशियो डिफरेंट है. ओके, कुछ भी लिंक नहीं है. यू कैन से वन रेशियो इज P is to Q, दूसरा रेशियो सपोज है R is to S. So these two are different ratios ना. तो if I use here X, if I take the income of A as thrice X, income of B as 7X, and income of C as 4X, if I take X in the first ratio, तो X यहां पे मैं नहीं ले सकता हूं. I cannot take X in the next ratio because next ratio is different ratio. Okay, next ratio किसका रेशियो है? ये एक्सपेंस का रेशियो है. तो यहां पे आपको लेना होगा डिफरेंट वेरिएबल which is Y. तो let me take Y here. Let the expense of A be 4Y, expense of B be thrice Y, and expense of C be 5Y. Okay, X और Y क्यों लिया? Because these two are different ratios. Okay, कुछ भी लिंक नहीं है दोनों रेशियो के बीच में. तो ऐसा क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है फॉर सम मेंस लेवल एग्जाम. ओके, मेंस लेवल एग्जाम के लिए ऐसा क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको यूज करना होगा दो वेरिएबल्स X एंड Y. तो ऑब्वियसली आपके पास अगर दो वेरिएबल्स है तो यू नीड टू इक्वेशंस टू सॉल्व दिस टू वेरिएबल्स. ओके, तो वन इक्वेशन कहां से मिलेगा आपको? इस लाइन से. सेविंग्स ऑफ A इज 300. ओके, सेविंग्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकम ऑफ A माइनस एक्सपेंस ऑफ A इज द सेविंग्स ऑफ A. सो इनकम ऑफ A thrice X माइनस एक्सपेंस ऑफ A 4Y, इट इज ₹300. तो ये आपको होगा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट अगेन आपको दिया है सेविंग्स ऑफ C इज 575. ओके, नाउ टू फाइंड सेविंग्स ऑफ C, सब्सट्रैक्ट इनकम ऑफ C and expense of C. The income of C is 4X minus expense of C is 5Y. Okay, ये कितना दिया है क्वेश्चन में आपको? 575. ये होगा इक्वेशन नंबर 2. Now from these two equations you can find the value of X and Y. तो ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है. ठीक है, आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ता है. और ऐसा बेसिक क्वेश्चन कोई भी मेंस लेवल एग्जाम और कोई भी हाई लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जहां पे आपको यूज करना होगा वैल्यूज ऑफ X एंड वैल्यूज ऑफ Y. Because these two are different ratios. Okay, so how to solve such equations? So to solve such equations, okay, the method of solving such equations is method of cross product or cross multiplication technique. इसका भी videos है. Okay, how to solve such equations, जहां पे आपको मिलता है two equations, two variables. Such equations are known as what equations? Simultaneous linear equations in two variables. Okay, simultaneous linear equations in टू वेरिएबल्स. तो ऑलरेडी इसके पीछे मेरा 2 वीडियोस है इन द विजन क्यू चैनल. तो आई विल गिव दिस लिंक्स ऑफ दिस 2 वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो प्लीज डू वॉच द 2 वीडियोस, ओके, ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशंस. तो हाउ टू सॉल्व सच इक्वेशंस, व्हाट टू डू टू फाइंड आउट X, वी स्टार्ट फ्रॉम Y एंड क्रॉस मल्टीप्लाई. तो किसको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई? To find out the value of X, start from Y and cross multiply. पहले आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो -4 into 575. ठीक है, तो -4 into 575 कितना आ जाएगा आपके पास? Now 4 into 500 is how much? 2000. 75 into 4 is 300. तो आपको मिलेगा -2300. नेक्स्ट ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, 300 into -5 is how much? -1500. Then always subtract them. Always subtract these two numbers. Okay. To find out the value of X, start from Y and cross multiply. ठीक है. Next, नीचे वाला पार्ट क्या होगा? To find out again start from Y. Okay. अभी आपको इस तरफ मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में. पहले आपने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया था, अभी आपको मल्टीप्लाई करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में. दिस एंड दिस इन दिस वे. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्सट्रैक्ट. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड minus. So 3 into -4 into 4 -16 and 3 into -5 is -15. Always subtract them. Okay, तो ये कितना आ जाएगा आपका? -2300 प्लस 1500. ये कितना हो जाएगा आपका? -800. Okay, then -16 plus 15, it is -1. तो माइनस माइनस इज कैंसल आउट. एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका? 800. तो एक्स इज 800. ओके, वंस आई फाइंड एक्स, आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल y by putting this x in the first or second equation. Now if I put the value of x in the first equation, okay, if I put the value of x which is 800 in the first equation, what I will get? See, 3 into x 800
3 इंटू 800 कितना हो जाएगा आपका 2400 माइनस 4y इज 300, तो यहां से 4y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2100, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा ओके 4 5 20, 4 2 8 एंड 4 5 20, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 525, तो x इज 800 एंड y इज 525. Okay, so once I find x, I can find out the savings of b. अच्छा, savings of b कितना था, income of b था 7x माइनस एक्सपेंस ऑफ b था thrice y, तो आपको निकालना क्या है 7x माइनस thrice y का वैल्यू कितना होगा, तो 7 इंटू 800 कितना हो जाएगा 5600 माइनस 3 इंटू 525, ओके 3 इंटू 525 कितना मिलेगा आपको 1575, ओके देन सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 5600 माइनस 1575, तो ये कितना मिल जाएगा वैल्यू आपको 4025, ओके आंसर विल बी हाउ मच 4025, ऑप्शन नंबर बी. तो ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फॉर सम मेंस लेवल क्वेश्चंस. ओके सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन टुडे सीरीज, क्वेश्चन नंबर 10. So it says that rupees 4,300 is divided between 45 persons in which man, woman and children are included. Okay, मतलब टोटल आपके पास इतना रुपीज है 4,300, इसको डिवाइड करना है among 45 persons between man, woman and children. Okay, man plus woman plus children मिला के कितना परसेंट है आपका 45 persons. The money received by man, woman and children is in the ratio of 12:15:16. ओके, ये मनी रिसीव का रेशियो दिया है. ओके, मनी रिसीव का रेशियो कितना दिया है आपके पास 12:15:16. ये मनी रिसीव का रेशियो दिया है. दैट मीन्स मनी रिसीव बाय मैन इज 12, ओके अमाउंट रिसीव बाय वुमन इज 15 एंड द अमाउंट रिसीव बाय चिल्ड्रन इज हाउ मच रुपीज 16. नाउ वी नो टोटल अमाउंट इज हाउ मच 4,300 ना, तो टोटल अमाउंट एज पर रेशियो, ओके 12 प्लस 15 प्लस 16. So 12 plus 15 plus 16 will be how much? 43. Okay. Now 43 will represent how much? 4,300. Then 1 ratio is representing rupees 100. If 1 is rupees 100, 12 is 1200. Okay. 15 is 1500. And 16 is how much? Rupees 1600. तो ये क्या निकाला आपने? Just amount received by man is 1200. Amount received by woman is 1500 and amount received by children is rupees 1600. But till now we don't know how many men, how many women and how many children are there in this total 45 number of persons. So read the next part after this. While the money received by each is in the ratio of 6:5:4. Okay, ये किसका रेशियो दिया है? Money received by one man, okay, money received by one man, वन वोमेन एंड वन चाइल्ड. इसका रेशियो कितना दिया आपको 6:5:4. नाउ वन मैन विल गेट 6 rupees एज पर रेशियो एंड टोटल अमाउंट रिसीव बाय मैन इज हाउ मच 1200. ओके सो फ्रॉम दिस टू रिलेशनशिप्स आई कैन फाइंड व्हाट नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वोमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन का रेशियो. ओके मैन कितना है, वोमेन कितना है और चिल्ड्रन कितना है का रेशियो निकाल सकता हूं. ओके टोटल अमाउंट रिसीव बाय मैन इज 1200 rupees एंड वन मैन रिसीव 6 rupees एज पर रेशियो. सो कितना मैन होगा आपके पास 1200 को 6 से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, इस 2 ये लेकिन रेशियो में होगा. हाँ, ये नंबर ऑफ मैन का नंबर ऑफ मैन रेशियो में है. नेक्स्ट वी नो अमाउंट रिसीव बाय वोमेन इज हाउ मच 1500 rupees. अमाउंट इज रिसीव बाय वोमेन and number of, okay, one woman receives 5 rupees as per ratio. So how many women are there as per ratio? 1500 divided by 5. And number of children, okay, total amount received by children is how much? Rupees 1600. And one child receives rupees 4 rupees. So how many children are there as per ratio? 1600 को 4 से डिवाइड कर दीजिए. ओके तो यहां से देखिए वैल्यू कितना मिलेगा आपको यहां से. So if I divide 1200 by 6, ये कितना हो जाएगा 200 is 2, 1500 by 5 300 is 2,
1600 by 4 400. तो यहां से रेशियो कितना मिलेगा आपके पास 2:3:4. So this was our aim, okay, to find out the number ratio, number of men, number of women and number of children. ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया नहीं था, ये आपको दिया था कहां से निकालना पड़ेगा, ये अमाउंट का रेशियो एंड 1 मैन 1 वोमेन एंड 1 चाइल्ड को कितना कितना मिलेगा उसका रेशियो से आपको निकालना था नंबर का रेशियो. नाउ वी नो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज 45. So 2 plus 3 plus 4, that is 9, will represent 45%. So 1 will represent how much? 5 rupees, 5 persons. If 1 will represent 5, it is asked to find what? Number of men, number of women, number of children. So number of men is 2. So 2 will represent 2 into 5, which is 10. 3 will represent how much? 3 into 5, which is 15. And 4 represents 4 into 5, which is 20. So 20 number of men, 15 women and 20 children. The correct answer of this question number 10 or the last question is option number A. Okay, 10, 15 and 20. So these were the 10 very important questions. Okay, important for any examination. Questions of ratio. I have discussed different questions, different techniques to solve such questions. So please do watch this video over and again to get the concepts clear of ratio. And please do watch these two parts. First part was the concepts and the second part was some questions of basic to high level. So if you have liked this video, please don't forget to share this video with your friends. Okay. And also subscribe to our channel for more such important videos. तो इसके बाद एक और वीडियो आपका होगा. I'll discuss there on different chapter in the next video. So till then, meet you in the next class. So thank you everyone.